Hello students, today we are going to look for class 7 maths revision session of chapter number 8 to 15 multiple choice question part number 2. Part number 1 I have already uploaded, whose link I'll be providing in the description section of this video. So let us begin with the multiple choice question from where we have left. See, we have covered multiple choice question till here, that is question number 13. We have to start from question number 32. So what is they are telling? What they are telling, the ratio of 3 kilometer to 390 meter is dash. Now always remember, whenever you have to find out the ratio, the unit should be same. यहाँ पे one is in kilometer, the other one is in meter. दोनों को आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करो. एंड हमेशा याद रखो, यूनिट के लिए आप हमेशा बिगर टू स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन करो फॉर योर कन्वीनियंसी. सो हियर विच वन इज़ बिग? किलोमीटर इज़ बिग, सो कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर्स. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, so it is 3000 meters is to 390 meters. Meter and meter cancel, hence ratios are always unitless. ये भी आपको याद रखना है. 0 and 0 cancel. Let us cut these numbers by 3. 3 hundreds are, 3 13s are. So your ratio will be 100 is to 13. That is option number B will be the correct answer. Next one, an isosceles triangle has dash LOS. Isosceles means whose two sides are equal. So a triangle whose two sides are equal has only one line of symmetry. Always remember this. So option number A will be the correct answer. And scalene triangle has dash LOS. Scalene triangle means whose all the three sides are different, like this. ठीक है. अब ये जो ट्राइंगल है, इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स अलग होती है. ओके, सो 0 LOS. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द सॉलिड शेप्स इज हाउ मच. सी, यहाँ पे आपको 3 सॉलिड शेप्स दिए हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्टाइसेस. वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर्स. ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? लेट अस सी. 1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This shape has how many vertices? 8 vertices. Let us count for this. Okay, so this is what? Square pyramid. 1 2 3 4 5 vertices. Let us count here. 1 2 3 4. कितने vertices हैं? 4. It means option number, figure number A 8 vertices, figure number 2 5 vertices, figure number 3 4 vertices. It means, so answer is option number A, that is 8 5 4 is the number of vertices which are there in figure number 1 2 3 respectively. Next one, 8 raised to 5 8 raised to 2 multiply 8 raised to 10 is equal to dash. So see, you have learnt in the power and exponent chapter that when the bases are same, in between it is multiplication, then you have to add the powers. So what you have to do is 8 raised to 5 plus 2 plus 10, because here bases are same and in between it is multiplication, so you have to add the powers. 8 raised to 5 plus 2 7, 7 plus 10, that is 17. So 8 raised to 17 is your perfect answer. Option number B is the correct answer. Next one, 8 raised to 5 divided 8 raised to 2. It means when the bases are same, in between it is division, then you have to subtract the powers. So 8 raised to 5 minus 2, that is 8 raised to 3. So your answer is option number A, that is 8 raised to 3. Next one, find negative rational number. Rational numbers are what? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of P by Q, where Q should not equal to 0. ओके, तो इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? देखो, अगर दोनों नेगेटिव हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. लेकिन अगर आपका कोई भी एक नेगेटिव है, जैसे पी नेगेटिव है और क्यू पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. अगर मान लो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो भी ये नेगेटिव रेशनल नंबर ही कहलाएगा. लेकिन दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा. फाइन. सो हियर लेट अस सी, बोथ आर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग.
हियर ओनली वन टर्म इज नेगेटिव, सो दिस इज राइट. ओके, और यहाँ पे तो ये पूरा ही पॉजिटिव है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर. रिमेंबर दैट इफ बोथ आर नेगेटिव, okay, if both are negative then that is a positive rational number. Okay, for a negative rational number either your numerator or denominator should be negative. So option number B is the correct answer. Next one, find order of rotational symmetry of rectangle. That is 2. Answer is 2. C. Order of rotational symmetry of rectangle. It means what? From the cycle of 0 to 360 डिग्री. ओके, आपने शेप्स एंड पैटर्न में पढ़ा होगा. 0 से 360 डिग्री के बीच में कितनी बार आपका रेक्टेंगल जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है, उसको हम उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे. द शॉर्ट फॉर्म इज OOR, दैट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ओके, लेट अस ड्रॉ हियर रेक्टेंगल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर मैनर. से फॉर एग्जाम्पल ये आपका 0 डिग्री पे है, ठीक है. देन ये 90 डिग्री पे हमने इसको टर्न करा. देन ये 180 डिग्री पे हो गया. ओके, इसमें और 90 डिग्री हम जोड़ेंगे तो ये कितना डिग्री पे हो गया? 270 डिग्री पे हो गया. अगेन 90 डिग्री. दिस इज नाउ एट लास्ट ऑन 360 डिग्री. So from the cycle of 0 to 360 degree, you have to look that rectangle is looking same how many times like the original figure. Okay, so see, this is the original figure. Okay, the one which I have ticked in black color. उसके जैसा हमें कितनी बार दिख रहा है? क्या 90 डिग्री पे सेम दिख रहा है? नहीं. क्या 180 पे हमें सेम दिख रहा है ओरिजिनल फिगर जैसा? यस. क्या 270 पे हमें सेम दिख रहा है? नहीं. ओके, हमें हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चाहिए ना, ओरिजिनल हमारा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, इसीलिए तो यहाँ पे हमें 360 डिग्री पे सेम दिख रहा है. सो आई कैन से 2 times, 1 time here and 1 time at 360 degree you are having the rectangle same as at 0 degree. It means order of rotational symmetry of rectangle is 2. Okay, फाइन. और एंगल ऑफ रोटेशन अगर आपसे पूछते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा. ऐसा एंगल जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम में वो फिगर आपको ओरिजिनल फिगर जैसा दिखता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री. फाइन. सो AOR पूछेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज़ एंगल ऑफ रोटेशन. एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर आपसे पूछते हैं तो 0 से 360 डिग्री में कितनी बार जो शेप है वो आपको ओरिजिनल फिगर, ओरिजिनल शेप जैसा दिखता है, तो 2 times है, तो आपका OOR ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर रेक्टेंगल इज 2 हो जाएगा. नेक्स्ट वन, फाइंड OOR ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के लिए पूछ रहे हैं, तो स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर है ये आपका, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है. देन अगेन दिस विल बी ऑन 90 डिग्री. अगेन दिस स्क्वायर विल बी ऑन 180 डिग्री. अगेन the square look like this on 270 degree. The square look like this on 360 degree. So 1 2 3 4, ठीक है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, चारों बार में ये आपको सेम नज़र आता है. इसका मतलब 0 से 360 डिग्री की जो साइकिल है हमारी, उसमें जो स्क्वायर है ये ओरिजिनल कब नज़र आता है? ऑल द 4 टाइम्स स्क्वायर लुक्स लाइक द सेम ओरिजिनल फिगर एट 0 डिग्री एट ऑल द यू कैन से एंगल्स. तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 4 हो जाएगी. एंड एंगल ऑफ रोटेशन मीन्स द एंगल एट विच द फिगर इज लुकिंग सेम एज द ओरिजिनल फिगर, सो दैट विल बी एट 90 डिग्री. सो AOR बोलेंगे अगर स्क्वायर का तो 90 डिग्री हम लिखेंगे, और OOR बोलेंगे तो 4 लिखेंगे. ओके, सो योर आंसर इज व्हाट? 4. नेक्स्ट वन, फाइंड OOR ऑफ सर्कल. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर सर्कल. ओके, अब सर्कल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन दैट विल बी इनफाइनाइट. वाई? बिकॉज सी यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पूछते हैं ना तो भी इनफाइनाइट आता है, क्योंकि आप इसे कैसे भी कहीं से भी फोल्ड करो डायमीटर, इसका जो फोल्ड है वो हो जाएगा. ओके, ओवरलैप हो जाएगा. तो LOS पूछेंगे तो इनफाइनाइट आएगा. अगर OOR यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री पूछेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हम इसको कितने भी फ्रॉम 0 से 360 डिग्री में हम जहाँ जो भी एंगल से हम इसको टर्न करेंगे तो ये हमें सेम सर्कल ही नज़र आएगा. इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम्स. ओके, सो योर आंसर इज इनफाइनाइट. ओके,
Okay, so this was all about for the video and for the revision part. I hope everybody enjoyed and liked the video. If you have any doubts, then you can comment me in the comment section. If you really enjoy my video, please give it a like, share among your friends, and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.